कबीर ना मोहे ना छापरी ना मोहे ना छापरी ना मोहे मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है, मेरे जात नाना ना मोहे ना छापरी ना मोहे ना छापरी ना मोहे नहीं गा ना मोहे नहीं वीर मोहे मरने का चाओ है, मरूं तो हर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे पर हमारे ना मोहे ना छापरी कबीर ना मोहे ना छापरी ना मोहे नहीं गा ना मोहे नहीं गा। ना हम किया न करेंगे, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर ना कर सके
किया क्या जानूं किछ हर किया पयो कबीर कबीर पयो कबीर कबीर ना मोहे छान कबीर ना मोहे छान ना छापरी ना मोहे घर नहीं गाँव ना मोहे घर नहीं गाँव मत हर पूछे कौन है मत हर पूछे कौन है मेरे जात नाम मोहे ना छपरी ना मोहे घर नहीं गाँव ना मोहे घर नहीं गाँव ना मोहे घर नहीं गाँव। प्यारी साध संगत जी, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਰਹਾਉ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਉਸਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਮਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਊੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤਨ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੌಢਾਵਾਦ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ।
ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਗੁਣ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਾਰ, ਮੀਨਸ ਮੱਤ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ 82 ਈਅਰਸ ਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੁੰਨੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ या पापी कर्म करता है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਝਕੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾਸਿਓ, ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰ ਪਰਿਓ, स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेकां, मनु विवेकां वाली कॉमन डिवाइन इंटलैक्ट वाली मत बख्शो जी। कॉमन डिवाइन इंटलैक्ट की मत की होंदा है, समझ आ जाती है सर अफसर की, चंगे मंदे की। ते मनुख मंदा कर्म करन तो अपने आप नूं रोकदा नहीं है, उन्होंने सप्रैशन कहते हैं।
ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੌਪਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਉਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਕੋ ਸ਼ੂਨਯ ਕਰ ਲੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ੂਨਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਨੇ ਮੋਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਮੋਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਪਰ ਅੰਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਕੂਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੌਟੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਏ, ਤੰਗ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅੰਨਾ ਮੋਹ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏ कि ये बच्चा भी मेरा बच्चा है। गरीब का बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा है। धरती तो अमीरी गरीबी दे डिफरेंसिस खत्म हो जाएंगे। रब जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए हैं। सो गुरु पातशाह कहते ने मन नूं शून्य ना कर। मन की सोचदा है, इनू कह मन मेरे सतगुर कह पाना चल। गुरमत बड़ी क्लीयर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गल करती है। सो असी गुरबाणी चो ना गुरबाणी दे अखरां दे अर्थ समझने ने। जिवें मैं पिता की गल की, संतोख की गल की, पुत्र की गल की, मत की गल की, नार की गल की। जदों असी आरता का शब्द पढ़ांगे, गोपाल तेरा आरता, उहदे विच जदों ऐसे सारे शब्दों के विचकार जदों ऐसी वोकैबलरी आती है, घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगियो। घर की गीहन का मतलब ये नहीं है कि वो वोटी मांग रहे हैं। घर की गीहन मीन्स इस घर की मैं अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी नार, अच्छी गीहन मांगता हूँ। मनु चंगी सुमत बख्शो। जो मनु सुमत ना चंगी होवे, जिस तरह के साडे घर दी माँ या वोटी चंगी ना होवे, मेहमान का आना मुश्किल हो जाता है। मेहमान समझ जाता है, नक चढ़ाती है ना। और आम कहावत है, वो पूछता है कि तुहाडे घर जदों कोई मेहमान आ जाए कि तुहाडी वोटी कुछ चंगा चंगा पका के रखती है, कुछ बना लैंदी है? कहंदा हाँ, कुछ बनाती है, नहीं बनाती, मूँह जरूर बना लैंदी है। तो जदों मूँह बना लैंदी है, मेहमान नूं पता लग जाता है मुड़ के मैं नहीं आना। जो मूँह ना बनाए तो असी घर विच कुत्ता बिल्ली रख सकते हैं। जो मूँह बनाए तो कुत्ते बिल्ली नूं पता लग जाता है इस घर की मालकिन मुझे पसंद नहीं करती है। घर की गीहन चंगी होवे,
ਤਾਂ 10 ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਬਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੋ, ਐ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਅੰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ब्रॉडावार। गुरु पातशाह कहते हैं अन्ने से ना आँखें जिन मुख लोए नायन, उनको अंधा नहीं कहते हैं जिनकी ये आँखें नहीं होंदियाँ। मनु खिमा कर देना, मनु हुण थोड़ी जी आदत भी पै गई है कि मैं विचकार हिंदी बोल जाता या इंग्लिश बोल जाता, पर अरुणाचल प्रदेश भुवनेश्वर कटक जिथे लोगों को पंजाबी नहीं ढंग दी आती, हिंदी ढंग दी नहीं आती, वो कॉल करते हैं भैया जब टीवी पर बोलते हैं और पंजाबी बोलते बोलते थोड़ा सा एक हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, हमको पूरी बात समझ में आ जाती है। तो वो भी गुरबाणी सुन रहे हैं। और एक इंसान जो सिख भी नहीं है वो मनु कहता है मैंने टीवी पर सुना आपने शब्द पढ़ा बाबा अब न बसोए गाँव, और उस शब्द की आखिरी पंक्ति को आपने गाया आपकी बार बख्श बंदे को बौर ना पोजल फेरा। तो मेरे कुछ सिख लोग भी फ्रेंड हैं, वो समझते हैं ये जो इंसान मर गया है इसको इस बारी बख्शो ताकि मुड़ के ना आना पड़े, लेकिन आपने ये शब्द के अर्थ एक्सप्लेन किए, मुझे समझ में आ गए। सो मनु खिमा कर देना जे मैं टूक मात्र विचों थोड़ी जी गुलाबी पंजाबी या हिंदी बोल जाता। गुरु पातशाह सानू अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। जो गुरु पातशाह जी की लैंग्वेज सीखता है उसनू बाणी दे गहराई दे अर्थ समझ आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन वाले नहीं, लफ्जी अर्थ नहीं, अपने ते टुका के समझण वाले। मैं किस तरह संतोख पिता नाल लड़दा हाँ तो मेरी डिस्टरबेंस होंदी है। जिवें अज बच्चा पिता नाल रुसिया रहिंदा है, मेरे को नया फोन नहीं लेके देते, डिस्टर्ब रहिंदा है ना घर। अज पिता माँ दे नाल लड़दा रहिंदा है कि हर वेले तुसीं सब्जियां बना दिंदे हो, बक्कल सब्जियां बना दिंदे हो, मनु बाजारों बिरयानी क्यों नहीं मंगा के दिंदे, पिज़्ज़ा मंगा के क्यों नहीं दिंदे। ओदी जीभ दे स्वाद विच ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए दी खेड कुछ वापरदी पई है। उसकी मन रूपी जीभ किसी होर रस के चक्कर विच है। सो असी बाणी नूं जदों अपने ते टुकाण दे अर्थ लभदे हाँ और अज दे संदर्भ विच लभदे हाँ, अज दे कॉन्टैक्स्ट विच लभदे हाँ, साडी जीवन शैली बदल जाती है। वी आर बाउंड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। सानू अंदरों ही बदो बदी शौक चढ़ जाता है कि मुड़ के मैं काम ना करया कर। सो असी बाणी दी बनतर, बाणी दे अखरां नूं, बाणी दे अखरां दी गहराई नूं बाणी चों समझना है। जिवें गुरु पातशाह ने अन्ने दी डेफिनेशन दी, एंड सारी दुनिया तीर्थ समझती है, कोई चार दीवारों वाला या कहीं पर कोई पहाड़ी पर या कहीं कोई जंगल में या जहाँ कहीं पर कोई पानी चल रहा हो वहाँ पर जाओ और वहाँ मंथली जाओ, सालाना जाओ और नहाने जाओ, उन्होंने दुनिया तीर्थ कहती है। हम गुरु पातशाह कहते तीर्थ नहाउण जाओ, मैं दसदा तुहानूं तीर्थ की हुंदा। गुरु पातशाह कहते तीर्थ नहाउण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। हुण गुरु पातशाह तीर्थ की गल कर देंदे ने, गुर समान तीर्थ नहीं कोई। अच्छा गुरु पातशाह तुहाडी नज़रां विच सतगुर नूं ही तीर्थ कहंदे ने, किसी थां नूं नहीं कहंदे ने। कितना सिंपल हो गया ना। हुण सानूं तीर्थां ते नहीं जाना पेगा, पर गुरु पातशाह जी की लैंग्वेज सीखांगे ना। पिछे पता नहीं कितने प्रोग्राम होया, मनु सामने पंक्ति आ गई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई,
ਹੁਣ हम सबको मालूम है पंचाली किनू कहते हैं, द्रौपदी नू। किनू नहीं पता? द्रौपदी नू कहते हैं। पर जिस स्टोरी के मुताबिक गल की जाती है वो स्टोरी है पंचाली मीनस द्रौपदी नू राज सभा विच किहदी सुध आई? कृष्ण जी दी। हुण गुरबाणी इसका भेद खोलती है। मेरी मत जदों अवगुण विकारां दुर्योधन दे मंदे ख्यालों के राज दरबार विच नगन की जाती है, मीनस भैड़े ख्याल आने शुरू होंदे ने, जम मेरी पत लुटते ने, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। हुण गुरबाणी ऐसे भेद खोलती है। जदों मंदे ख्याल इस तरह ही असी पढ़ते हाँ बाबर वाणी जो साडे भारत विच हिस्टरी वापरी। गुरु नानक साहब बाबर वेले मौजूद सन। बाबर ने जो कुछ जुल्म किए गुरु नानक पातशाह ने कलमबंद किए और गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज है। लेकिन वो हिस्टरी वापरी, उस हिस्टरी चों हुण मैनू की सेध लैनी है, ये मेरा काम होना चाहिए। जिवें असीं पढ़दे हां शम तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे परधाम लालो शर्म तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे परधाम लालो पाप की जंग ले काबल उताया पाप की जंग ले काबल उताया जोरी मंगे दान बिलालो जोरी मंगे दान बिलालो। जदों मैं सच ते प्रैक्टिकल लिविंग ते अमली जीवन जाच ते मेहनत नहीं करता ना उन्होंने श्रम ना करना कहते हैं। श्रम धर्म दोए छप खलोए। जदों मैं जो सुनिया सत्संग जी मैनू कहने की लोड़ नहीं है कि तुसी प्रैक्टिकल नहीं टुरदे। मैनू तो अपने बारे सोचना है कि मेरे समेत असी शमशान घाट जाते हैं, उत्थे कहते हैं यार आखिर तो इत्थे एक दिन इंज आना ही है, कि यार दुश्मनियां छड्डो, कि असी मूँह माया के चक्करां च पे रहंदे हैं, लड़ते रहंदे हैं, इन्ने झगड़े करते रहंदे हैं, एक दिन ते बड़े उत्थे शरीफ हो जाते बाहर आके, फिर असी वैसे नहीं रहंदे ना। इस तरह ही असी गुरुद्वारे जाते हैं, उत्थे बड़े शरीफ हो जाते हैं, फिर बाहर आके वैसे नहीं रहंदे हैं ना। संगतां मैनूं सवाल पुछदियां वीर जी असी जो सुनिया होंदा है वो थोड़ी देर असर होता है, फिर असी वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण कि जदों मैं उस ते मेहनत नहीं करता श्रम तो पता की होंदा धर्म मेरे अंदरों पंख लगा के उड़ जाता है, श्रम धर्म दोए छप खलोए फेड हो जाते हैं दोनों। मेहनत की नहीं, धर्म अंदर फेड हो गया, मीन्स दब गया, सप्रेस हो गया। श्रम धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान में ला लो। मेरी प्रधानता मेरी अगुवाई मेरा लीडर कूड़ हो जाता है। तो जदों कूड़ प्रधानता हो जाए तो दुर्योधन वांगू जम जिमें बाबर सारी सेना लैके आ गया सी उस तरह आ जाते। पाप की जंज हुण सानू कोई पूछे कि बाबर की बरात लैके आया सी। गुरु पातशाह ने किस तरह हिस्ट्री भी बयान की है जो सच्ची वापरी सी, और उसनू किस तरीके दे नाल कलमबंद किया है। कहते पाप की जंज लै काबल उताया। साडे घरां दे विचकार जदों जंज चढ़ती है आंदी है, और एन मौके ते कहते हैं ये डोली तब उठेगी जब इतने लाख दोगे, जब इतना कैश दोगे, जब इतना सोना दोगे। तुसी सानू क्या सी इन्ना देंगे, 550 बंदियां नूं तुसी कुक्कड़ नहीं खवाए। यह सारियां जो तुसी जिद्दां उस वेले करदे आ ना,
उस वेले सानू कहते हैं यह सब कुछ दियो। असी वैल्यूएबल आइटम्स मंगते हैं, पाप की जंज लै काबल होता है, जोर ही मंगा है। दान भी ला लो, मेरे को दान विच जोर ही पता की मंगता है, सहज, संतोख, सबर, हलीमी, मिठास, नम्रता, ये सारे एसेट्स ने, कैपिटल, एक कीमती कीमती मेरे खजाने दे गुण मंगदा है जम। कौन? बाबर। कूड़ प्रधानता हो गई है। जदों मेरा मन संतोखी नहीं है, तृष्णालु है, श्रम करता नहीं है, धर्म दे नेड़े नहीं लगता, श्रम धर्म दो छप खलोए, तो इस दे जीवन च पता की होंदा है, बाबर वाणी फिर गई, क्रूअल हो जाता है। कोयर ना रोटी खाए, कोयर कहते ने मेरे मन नू, मेरा मन संतोखी नहीं रहता है। साध संगत जी, ये उस वेले दी सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियल वापरी हिस्ट्री है। लेकिन कुर्बान जाइए गुरु पातशाह जी, तुसी उसनू बाणी विच रच के हिस्ट्री ही नहीं सुनाई, सिर्फ मैनू दस्सिया है कि मेरी जीवन जांच की होनी चाहिए है। जदों मेरा खून खराब हो जाता है, जिमें कि अजकल नहीं कई दिनों तो मैं सुन रहा, कई सालों तो सुन रहा, बुजुर्ग कहते ने अजकल दे बच्चे फिट गए ने, सेवा नहीं करते ने, इनका खून सफ़ेद हो गया है। सच्ची मुच्ची मैडिकल टर्म्स से सफ़ेद नहीं होया होता, दरअसल खून कंटैमिनेटेड हो गया। इस कंटैमिनेटेड खून नू सतगुर दी मत दे नाल वॉश आउट करना पेगा, साफ करना पेगा। इस दा पॉल्यूशन, इस दी जिहड़ी गंदगी है उसनू साफ करिए ना, उस टर्म नू गुरबाणी च इस शब्द विच कहंदे ने, खून के सोयले गाविए नानक, तेरा खून साफ करना पेगा, तेरा खून खराब हो गया और मेरा खून कंटैमिनेटेड हो गया है। पर कंटैमिनेटेड क्यों होया है? मैं तृष्णालु हाँ, मैं तृष्णा दी छन सिर उत्ते चढ़ाई हुई है। तृष्णा दे एक एक अंग नू छान कहते ने, एक एक अंग नू इकट्ठा करके जिहड़ी छपरी बनाई जाती उन्होंने छापरी कहते ने। और कबीर साहब कहते ने, ए मंदे ख्यालों वाली छन छापरी मैं छड़ दिती ना मोए छान, ना छापरी ना मोए छान, ना छापरी, ना मोए घर नहीं गाँव। मैं ऐसे वाला घर, छापरी जो कुमत दी ओट आसरे च रखी जाती है उसनू तृष्णा कहते ने। घर जो छत मेरे मंदे ख्यालों की घर की बनाई हुई सी, वो ढह पई। कल असी इसी नू गायन किया सी ना, असी उसनू रीकैप करके अगे चलते हैं। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सब है उड़ानी ब्रह्म की टाटी, सब है उड़ानी ब्रह्म, रहना माया बांधी, रहना माया, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। जो जमा दे ख्यालों वाली बुद्धि दा मैं कपड़ा उणिया होया है, ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭ ਹੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇਥੂਨ ਗਨਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਛੱਤ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਲੇਂਡਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿਲਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੀਮ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਹਿ ਪਈ। ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇਥੂਨ ਗਿਨਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੱਤ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਏ ਛਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮੋਡ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਔਰ ਜੇ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, फिर बार बार इंज करता सी, फिर बार बार इंज करता सी। सामने एक बच्चा बैठा सी, ये जो आप बार बार ऐसे कर रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे, कहता अगर मैं नहीं करांगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वाकई गल ठीक है, साडे चारों पासे समाज जो असी जीवन जी रहे हैं ना, चंगा नहीं है, चंगा लग नहीं रहा है। इस करके डिप्रैशन वध रहा है, इस करके सुसाइड रेट वध गया है। WHO और दुनिया भर के हॉस्पिटल्स तो लैके गौरमेंटां नूं सिर पीड़ है कि नैचुरल डैथ नालों सुसाइड रेट क्यों वध गया है। मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, पर जो मैं सुनिया है 73% स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वांट टू कमिट सुसाइड। क्यों? क्योंकि असीं उन्हां दे सामने किहड़ा समाज रखिया, नशे वाला। असीं उन्हां सामने की चॉइस रखी है, बस तुम नशा करो, ड्रग खाओ और मस्त पड़े रहो। क्योंकि हम जात पात मानते हैं, क्योंकि हम बरादरी की गेम में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाज का सिस्टम चलता है। उन्होंने यह सारा कुछ देख के टकोसला लगता भी ये धर्म दी गल्लां करदे ने, पर साडे वास्ते की समाज छड्डिया है। कैसा इतना टैबूज दा भरिया होया, इतनी रिस्ट्रिक्शंस दा समाज बना के रख दिता है। हर सदी में इंसान नया खुदा ले आता है और नए नए सिस्टम बना देता है। कबीर साहब कहते हैं मंदे ख्यालों की सोच वाली छान छपरी घर गाँव मैं छड़ दिता, ना मोए छान ना छापरी, ना मोए घर ना ही गाँव। और अगर माथर पूछे कौन है, क्यों? क्योंकि मैं रब जी दे नाल मिलन की अवस्था माणना चाहता हाँ। सत्संग जी मैनू नहीं कहना पेगा कि तुसी खुशी मंगते हो, पर दुनिया का हर इंसान जो कुछ करता है अल्टीमेटली उसका रिजल्ट चाहता मैं सुखी होवां, मैं शांत होवां, मैनू चैन आवे, मैं खुशी महसूस करा। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, पर हैप्पीनेस इंज प्राप्त नहीं होती। असी पढ़ते हैं ना, उसनू बार बार पढ़ते हाँ, क्यों नहीं होती? कबीर साहब दसते हैं मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही औगुन करे, जान
ही अवगुण करे, काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, मन जाने सब बात। बस जदों भुलेखा पै जाए ना, मैनू सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। हुण तुसी करके देख लो, लंगर विच बैठ जाओ, पार्टी ते बैठ जाओ, ब्याह शादी चले जाओ, जिथे मर्जी चले जाओ, जिस इंसान नू गल करो एवरीबॉडी नोज, भरे हुए हैं हम, सबको धर्म सारा तो मालूम है। और भुलेखा जद पै जाता है, लिसनिंग क्लोज हो जाती है, सुने दियां चार पौड़ियां साडे जीवन विच वापरदियां ही नहीं हन। लिसनिंग क्लोज्ड, मन जाने सब बात दा भुलेखा पै गया। इनू मरना नहीं आ रहा, इनू जींदे जी मरना नहीं आ रहा। जिन्हां दी असीं साखी सुनदे हां कि उन्होंने 1699 वेले खंडे की पौल छकी, सीस तली ते रखिया है, उन्होंने जींदे जी मरना आंदा सी। और गुरु पातशाह बाणी राही कहंदे ने, शब्द मरो फिर जीवो साधी, तां फिर मरना होई। और इसनू मरना आ नहीं रहा, इसनू समझ नहीं आ रहा। साध संगत जी, मैं फिजिकल लेवल ते मरन की गल नहीं कर रहा, जो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर मुझे मरने का चाव है। क्यों? क्योंकि मैं रब जी नू मिलना चाहता। उन्होंने कहते ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। इस शरीरक मरण की गल नहीं चल रही, मैं अपने मंदे ख्यालों वाले पासों मैनू मरना है। मंदे ख्यालों का सिर लैके मैनू जाना है, मंदे ख्यालों का सिर मैनू रखना है। जिन्होंने खंडे की पौल छकण वेले थोड़ा जिहा मन अंदर डर पै जाता ना, उन्होंने ख्याल ये होंदा है कि मते सानू शराब छड्डनी पै जाए, ओ जी मते सानू फिर बरादरी छड्डनी पै जाए, ओ मते सानू ये छड्डना पै जाए, वो छड्डना पै जाए। ये फियर ही उन्होंने परमाई रखता है। सो मन जाने सब बात, जदों भुलेखा पै जाता, आई नो एवरीथिंग, यही अपने आप ही अवगुण है। और ए तेनू सुखी नहीं रहन देंदा। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। असी शरीर नाल बैड डीड्स, मंदे कर्म करते हाँ, लेकिन मंदे कर्म बैड डीड्स बाद विच करते हाँ। पहला मन कर लैंदा है, जदों मन सच नू इग्नोर कर देंदा है, हो गए। गुरमत इत्थे मन नू पकड़ लैंदी है, डीड्स होने तो बाद नहीं। मंदे कर्म तो पहला जिथों उपज है मन दी, उत्थे उन्होंने कहते हैं मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। हुण तू किवें सुखी हो सकना है? नो, यू कांट बी हैप्पी। हाथ दी कुएं भरे, तेरे अंदर रब जी वसदे ने, और फिर भी तू मंदे खरे ख्यालों दे खूच डिगदा, क्योंकि तू सच नू इग्नोर करता है। और कबीर साहब कहते हैं, मैनू रब जी दे नाल इकमिकता मीनस नानक भगतां सदा विगास वाला खेड़ा चाहिए है। माथर पूछे कौन है, मेरी जात ना नाओ। मैं अपनी जात वाली छपरी रखी हुई सी साध संगत जी, अपने शरीर दे नाल जड़ी जात असी ला के बैठे हाँ, उस तो छुटना बड़ी औखी गल है। पर जदों खंडे की पौल छकण जाते हैं, उस बाद सारे सिंह हो जाते हैं, कौर हो जाते हैं। देखो कितना गुरु पातशाह सौखा जीवन बना देंगे ने। जदों मैं अमेरिका गया और मैं 1984 85 86 विच मैं देखा लोग प्रॉपर्टीज़ लै रहे ने, साडा भी लैंड ते दिल करे असी जाइए और वो ठुकरा देन। फाइनली मैनू पता लगा कि अमेरिकन गौरमेंट ने लॉ बनाया होया है कि तुहानू इंडियन वेख के या तुहानू सिख वेख के कोई भी बैंक वाले डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इफ़ यू क्वालीफाई टू बाय द प्रॉपर्टी यू कैन। तुहाडे नाल कित्थे भी वितकरा नहीं किया जा सकता कि तुसी किस देश के इंसान हो और किहड़े धर्म के इंसान हो। इहदा मतलब गौरमेंटां इक्वैलिटी और वितकरा वाले लॉज चाहदियां ने, पर गुरु पातशाह मैनू खंडे की पौल छका के मेरी जात खत्म कर देंदे ने।
कहते हैं कबीर ना मोए छान ना छापरी ना मोए घर नहीं गाँव माथर पूछे कौन है। मनु यह फिक्र है कि जे मैं अपनी जात ला के रखांगा तो मैं तो फिर रह ही गया ना। पर गुरु पातशाह कहते तू तू करता तू हुआ मुझ में रहना हूं, पर मैं तो हूं अपनी जात ही नाल लैके फिरदा रहना। जब आपा पर का मिट गया जब देखा था तू। मैं अपनी जात इस करके कह रहे हैं भाई एक शहर अंदर दो भुपिंदर सिंह ने, फर्ज करो मैं अपनी जात का ना रखदा पकोड़ा, तो कोई पेठे वाला भुपिंदर सिंह ना समझ लवे, भुपिंदर सिंह पेठा ना समझ लैन। इस करके मैं सारी दुनिया नू अपने नाम दी आईडी रखना चाहता, पर ओ मैं हाँ, द होल यूनिवर्स द सेंटर मैं हाँ, भुलेखा। और जदों मैं अमेरिका गया ग्रीन कार्ड मिलन वेले उन्होंने पूछा लेस नेम, मैं लिखा सिंह। ओ अमेरिकन काउंसलेट मनु अंदरों पूछती है आई एम आस्किंग यू लेस नेम, मैं क्या माई लेस नेम इज सिंह। ओके मिस्टर सिंह, उन्हें मनु ग्रीन कार्ड दे दिता। और जो सिटीजनशिप मिली कहते पासपोर्ट पे की लिखे वट इज योर लास्ट नेम, मैं क्या सिंह। इट डिपेंड्स ऑन यू, पर जे मैं मनदा कच्चा होवा और मैं खंडे की पौल ना छक्की होंदी, अपनी जात मैं ना भी लै गया होंदा अमरीका, वो फिर पता कौन होंदे ने जेडे लाहौर भैड़े पिशौर भी भैड़े। तो मैं उत्थे कहना सी भुपिंदर सिंह पकौड़ा, उन्होंने अगे पकौड़ा लिख देना सी, मेरी वोटी नूं कहना सी मिसिज पकौड़ा। और फिर असी रिश्ता लभदिया तुसी पकौड़े वार लियो असी भी पकौड़े वार लिया। जातां दे नाल रिश्ते लभदे आ। कबीर साहब कहंदे ने जे रब नूं मिलना चाहना है जात छड्ड अगे जात नाल जोर है, मेरे जात नाल ना हो। साध संगत जी जात पात दे वितकरियां ने ऊंची जात और नीची जात, टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी, ਇਹ सारी गेम स्टार्ट करा दी। तुसी किसी इंसान नूं नीवीं जात दा अछूत नहीं कह सकते, पर गुरबाणी अंदर नीच जात लफज आया है। जदों मैं मंदे ख्यालों की सोचने वाला होंदा तां मेरा मन नीच जात होंदा है, और मैं उत्तम बन सकदा हाँ। नानक उत्तम नीच ना कोई। और जदों मैं सिख जावा अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, तब मैं किसनू कवांगा। पिछे मैं बड़े थोड़ा लाउडर लफ्जां नाल गया सी, क्या सी क्योंकि मेरे नाल वापरी है। मेरे नाल पहला ये वापरी कि मैं जिथे जावां लोकी कहंदे ओ पिशौरी है, ओ काबली है, थोड़ी नैगेटिव सेंस ते मत्था घुट के बोलते होंदे सन लोग। पर मैं लंडन गया काबलियां दे गुरुद्वारे, उन्होंने मैनू कहा खुल के गुरबाणी का प्रचार करो, टाइम लिमिट कोई नहीं है। मैं हैरान रह गया। जदों मैं जर्मनी गया काबलियां दे गुरुद्वारे गया, उन्होंने कहा जी सच का प्रचार करना चाहिए। साढ़े इत्थे गुरुद्वारे दाज प्रथा बिल्कुल नहीं चलती है, जिहड़े दाज और शराबां लैके लावां करते हो ना असीं इत्थे करन नहीं देंदे। मैं हैरान रह गया, दे आर ग्रेट पीपल। जदों मैं ग्रेटर क्लास 2 विच गया तो उत्थे भी काबलियां दी संगत, हैरान रह गया। और जो मैं महावीर नगर गया दिल्ली तिलक नगर के पिछे जो उन्होंने गुरुद्वारा है मनोहर नगर, मैं हैरान रह गया। उतों उन्हें गल समझ आई, वो एवं ही किसी बरादरी वालों ए पिशोरीए या वो पिंडी दे या वो पापे या वो जट या वो रामगढ़ीए, किसी भी जात वाले नीवा कहने की लोड़ नहीं। क्योंकि जो मैं लंडन गया, आस्ट्रेलिया गया, होर सब जगह गया, मैं रामगढ़िया सोसाइटी वालों दी करामातां देख के हैरान रह गया कि उन्होंने कितने ग्रेट ग्रेट काम किए ने। ਇਹਦਾ मतलब ये जात मैनू मेरे और रब जी के विचकार गड़बड़ रखती है। क्यों? क्योंकि मैं मनुखा नाल वितकरा रखदा। असी जुड़ जुड़ के पापे पापे वाले दे गुरुद्वारे जाते हैं, जट जटा वाले जाते हैं, रामगढ़िया के जाते हैं, रविदासियां के जाते हैं। ये की हो गया है? यह कबीर साहब का श्लोक विचारना पेगा सानू। विचारन का मतलब होंदा अमली, अमली होंदा है कि मैं खंडे की भौल छक लई है तो मैनू अपनी जात ला देनी चाहिए है। कितना सिंपल है। आगे का कबीर मोह मरने का चाव है, किस तरह मरीदा है? सब जगह तो हर वेले लड़ाई हो नहीं रही, मरीदा किस तरह है?
हो मन अर्पी सब तन अर्पी सब देशा हो सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेशा। गुरु नानक साहब कहते पे ने तै साहिब की बात जे आखे को नानक क्या दीजे शीस बड़े कर बैसण दीजे विण सिर सेव करी जाए। गुरु पातशाह तुसी केड़ा सिर कट्टण दी गल करदे हो, सिर धर तदी गली मेरी आओ, केड़ा सिर सिखांदे हो। साध संगत मैं एक निमाणा जिहा यतन करदा, एक आर्टिकल लिखिया सी, उसनूं मैं कोशिश करदा कि उसनूं थोड़े जे समय अंदर कनक्लूड करा। फर्ज करो मैं जदों पैदा होया तां मैं निर्मल नीर एक इंसान पैदा होया। मेरे घर वालियां ने मेरा नाम रख दिता भुपिंदर सिंह। जदों मैं थोड़ा वड्डा होया मैनूं यह अवेयरनेस आई मैं वो निर्मल नीर इंसान नहीं हाँ, इस बॉडी का नाम भुपिंदर सिंह है। बाद में मैनूं पता लगा इस बॉडी का नाम भुपिंदर सिंह ही नहीं है, इसकी जात भी है भुपिंदर सिंह पकोड़ा। जान के मैं पकोड़ा कह रहा क्योंकि मैं कोई भी जात लगाई हो जात वाले रूस जान के मेरे नाल, इस करके पकोड़ा किसी दी जात नहीं होंगी। सो मेरा नाम रखा गया, मनु भुलेखा पै गया मैं भुपिंदर सिंह हाँ अते मेरी एक जात है पकोड़ा। ये दो गल्लां मैं पकड़ लियां। नाउ आई एम नोन बाई दीज टू थिंग्स। आस्ता आस्ता मैं ना 8वीं पास कर ली, फिर 11वीं पास कर ली, फिर मैं इंजीनियरिंग कर ली, फिर मैनू एक होर लेवल मैं अपने नाल जोड़ लिया। आई एम नोन बाई भुपिंदर सिंह सिविल इंजीनियर। ये 3-4 गल्लां मैं होर अपने नाल जोड़ लियां। फिर मैं बाहर चला गया वीर भुपिंदर सिंह अमरीका वाला, यह 5वीं जोड़ ली। फिर यह जोड़ लिया कि वो दाढ़ी बंदा है, फिर मैं एक है भी नाल रख लिया। फिर मैं रख लिया कि वो इंग्लिश बोलता है, यह भी मैं अपना असैटिक नाल रख लिया। इस तरीके दे नाल ये सारे जितने असैट मैं अपने इकट्ठे करता गया, इन्हां दा नाम मैं समझ लिया कि यह है। यह सारे मैं कपड़े पाए हुए ने। यह सारे कपड़ियां दे पिछे जो निर्मल नीर इंसान सी, रब जी दा खुदा दा बंदा, रब जी दा बंदा, मेरे पातशाह दा बनाया होया इंसान, वो विचों गुआची गया। उसनू अचीव करने वास्ते मैं जे ए सारा अपना कैपिटल असैट दा कपड़ा जिहड़ा जो कुछ भी इकट्ठा किया है सामर्थ, जे मैं इसनू ड्रॉप कर दियां, ए मेरी मत है, ए मेरा सिर है, इनू जे मैं छड्ड दियां, इहदे विच मैनूं क्रोध चढ़दा है, मैं क्रोध नूं छड्डां। इहदे विच मैं इन्हां अखां दे नाल वितकरा करदा हां, लोकां नाल डिस्क्रिमिनेशन करदा, ए अखां मैं कटावां। इन्हां कन्नां नाल मैं निंदा सुनदा हाँ, ए कटावां। अपना एक एक नैगेटिव ऊर्जा कटावां। फिजिकल लैवल ते बायोलॉजिकल लैवल ते अखां और कन्नां दी गल नहीं चल रही, ये अखां दे पिछे जिहड़ा मेरा थॉट प्रोसैस है वो वितकरा करदा है। बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दूहू माए। जदों मैं डुअलिटी करदा, चंगा मंदा, गोरा काला, अमीर गरीब, तेरा मेरा, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा करदा हाँ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं गल्लां करदा हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ एक एक पुरजा कटाई जावां, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पुरजा पुरजा कट मरै। कबू ना छाड़ै खेत, मनु सच ते टुरना है, और मैं अपने अवगुणा का एक एक पुरजा कटाण वास्ते तैयार हाँ। कबीर साहब कहते ने मोए मरने का चाव है। जे मैं कटाना सीख लवां, मैं अपनी पकोड़ा उतार दियां, मैं अपने इंजीनियरिंग दा आकड़ उतार दियां। सासंगत उतरती नहीं है, क्योंकि मैं एक बार सांझ की सी, जदों मैं इंडिया आया और मैं पार्क च दिल्ली सैर करन गया, तो मैनू सैर करदे सामने एक माता जी नज़र आए, और वो माता जी मनु अगे आके कहते ने इन बच्चों को समझाओ, ये यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, ये पार्क सैर करने के लिए, क्रिकेट की बॉल अगर हमको लग गई फिर। थोड़ी देर बाद मैं देखा माता जी एक कॉर्नर पे किसी इंसान को गुस्सा कर रहे सन कि तुसी कुत्ता लैके आंदे हो, कुत्ता इत्थे गंदगी करता है। फिर थोड़ी दूजे तीजे दिन मैं देखा वो माता जी कुछ बच्चों को गुस्सा कर रहे सन। चौथे 5वें दिन ना मैं आइडिया लगाया, लगता है माता जी टीचर होंगे। कोई 1.5 महीने बाद उन्हों का बेटा व्हील चेयर लैके आ रहा है और माता जी वो बैठे सी। मैं पूछा क्या हुआ है, कहता इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुस्सा चढ़ता सी। मैं कहा माता जी क्या करते थे, कहता ये टीचर थे,
मैं क्या अच्छा, मैंने तो सोचा ही था पर सच्ची मुच्ची टीचर थे। कहता हाँ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ टीचरी नहीं उतरी, टीचरी वाला सिर नहीं कटा सके। क्यों? स्कूल में कहाँ जा रहे हो, इतने बजे कैसे आए, सीधे खड़े हो जाओ। ये आदत पई हुई सी। हुण घर पति भी दुखी, सस भी दुखी, नौकर चाकर भी दुखी, पार्क च जिथों लंघ जान माता जी दुखी। इस तरह साडे कोल जो कुछ भी सामर्थ कैपिटल इकट्ठा किया होंदा है ना, ये मेरा मन ना तूती वजांदा है और उन्होंने असीं बार-बार पढ़दे हुंदे हां। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। ये मन ना अपनी तूती वजांदा है मन दे ख्यालों की, और मैनू जमा वाली दुर्योधन के दरबार विच नगन करता रहता मेरी द्रौपदी नूं। पर जे सतगुर की मत लै लवे, ये अपनी तूती वजा के टुर जाता है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया, इन्हें जिहड़ा गंद इकट्ठा किया सी, खट्टिया होया सी, गठिया पोटली इकट्ठी की हुई सी। साध संगत पोटली गुरबाणी किस तरह समझाते हैं, लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई, अवगुणा की गंठड़ी छड़ना मरना। कितना सिंपल है, कितना आसान है। जिन्होंने ये गल समझ आ जाती है उन्होंने गुरु नानक पातशाह और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फर्क नहीं लगता। जिन्होंने समझ नहीं आती उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह समझना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम तो पहले से 9 गुरु तक के सिख हैं। ये गल उन्होंने भुलेखा क्यों पै जाता है? क्योंकि उन्होंने गुरु नानक सब तो बाणी पढ़ के सीखी नहीं, समझी नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सानू किस तरह सच नाल जोड़िया, किस तरह सीस मंगिया और सीस देना सिखा रहे ने। इतनक खटिया गठिया मटिया मिट्टी, ये जिहड़ी गंठड़ी अवगुणा की इकट्ठी हुई है, संग ना किछ ले जाए। जदों तू रब जी दे नाल मिलना चाहना है, जींदे जी इसे जीवन विच तेरे अंदर रब जी वसते ने, और जदों अंदर जाना चाहता है ना, अवगुण लैके नहीं जा सकता। रब जी दे देश दे अंदर जान हस्ते अवगुणा की गंठड़ी लैके नहीं जा सकता। खोटे खरे खजाने परखियन हुंदा उत्थे, उत्थे कोई रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं चलता। सोच तू कुशल नहीं है तां तेरे कोल अवगुण हैं। सोच तू अशांत है, तेरे कोल अवगुण। तू गल गल ते अपसेट होंदा है, तेरे कोल अवगुण हैं। आपने अवगुणा की गल कर सैट हो जाएगा। उन्होंने कहते ने सतगुर कर दीने, सतगुर कर दीने, अस्थिर करवार, अस्थिर करवार, अस्थिर करवार, अस्थिर करवार। सतगुर जी टिका देंदे ने, स्थिरता दे देंदे ने, बैलेंस करा देंदे ने। जे तू बैलेंस अवस्था चाहता है, सुख चाहता है, तो कबीर साहब कहूँगा ना, कबीर मोए मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। रब जी का द्वार की होंदा है? रब जी का द्वार होंदा है, रब जी तो सब जगह रहते हैं। हम खुद बोलते हैं कण कण में भगवान है, हम खुद मानते हैं गॉड इज omni प्रेजेंट। असी मनते हैं रब हाजर नाजर है, असी मनते हैं बलिहारी कुदरत वसिया है, असी मनते हैं रब जी सब जगह होंदे ने। जे सब जगह होंदे ने तो रब जी का द्वार सब जगह है। मी मरो तो हर के द्वार, मैं सच ते टुरना चाहता हाँ, अवगुणी मत वाले सिर वालों मरना चाहता हाँ, वो मत वाला सिर कटाना चाहता हाँ, मोए मरने का चाव है।
जिस ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਚੌਧਰਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਮਰਦ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਐਸਕੇਪ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੇਣ, ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ का ਚਾਵਾ मरो ता हर के द्वार, मैं सच ते टुर माथर पूछे कौन है परा मारे बार। जे सच ते टुरना चाहता है तो अपना सिर कटा लै, नहीं तो ए सिर लैके जाइए अपने मंदे ख्यालों का। तो यदी एग्जाम्पल भी मैं सांझ की सी। कई लोग मैनू कहते हैं क्लिक हो जाता तो मैं रिपीट भी कर ही देंदा, तुसी टीवी ते सुनिया होना। पर एक जगह लिखिया सी गुरुद्वारे दे बाहर, गुरुद्वारे दे अंदर जुराबां पा के जाना मना है। उसने पूछा ए मना है? कहते हाँ। क्यों मना है? उन्हें क्या बस मना है, तू जुराबां ला दे। उन्हें जुराबां ला दी, अंदर गए, अंदर जाके वो इस तरह करने लगा, कहता यार बदबू आ रही है। कहता हाँ इस तरह बदबू आ रही जिवें जुराबां दी बदबू होए। कहता तैनूं क्या सी बाहर ला के आ? कहता मैं बाहर ला दित्तियां सी। कहता फिर बदबू क्यों आ रही है? कहता जुराबां मैं बोझे च पाई हुई हैं। जुराबां जे बोझे च पाई हुई हैं, मंदे ख्याल असीं नाल दे रखीए तां ते बदबू मंदे ख्यालां दी आएगी, तां ते मेरे मंदे जीवन दी आएगी। मातर पूछे कौन है परा मारे बार, जे मैं ए वाली जात सिख लवां ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਨ ਛੱਪਰੀ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, मेरे बिना कौम डूब जाएगी मैं करता, मेरे बिना गुरुद्वारा नहीं चलेगा मैं करता, मैं इन्ने साल प्रबंधकी की गुरुद्वारा मैं फिट रखिया मैं करता। भुलेखा ना घर मैं कहता मैं कमा के न्याय भुखे मरोगे, माँ कहती है जी मैं तुहाडे वास्ते पकावांगी नहीं भुखे मरोगे मैं करता। ए करता वाला जिहड़ा ख्याल है ना यह शरीर है और इस शरीर दे नाल कुछ नहीं किया जा सकता। ਇਹਦਾ मतलब करता मन है, आपे ही रिडल खुलती जाती है। मन जदों करता बन जाता है, जो मन चाहता है मेरा शरीर वो करता है। ਇਹਦਾ मतलब मन नूं सतगुर दी मत वाला करता देना पएगा। ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया पयो कबीर कबीर। फिर साडी वो अवस्था बन जाती है कि ए मैं नहीं किया, गुरु पातशाह ने मेरे को कराया है, रब जी मैनू सुमत बख्शण। फिर मनुख किसी होर उत्ते उंगल चुकनी छोड़ दिंदा है। फिर मनुख धर्म का ठेकेदार बन के दूसरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह ऑर्डर नहीं करता जिवें असीं गली गली विच कूचे कूचे विच हर मनुख ही कैसी चली अब की हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। एक मनुख हर कोई बन जाता है ना, सारे कानून अपने हाथ ले लेंदे हां असीं। कबीर साहब बड़ी नम्रता च कहंदे ने ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया पयो कबीर कबीर।
ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। मेरा शरीर क्या है, मेरे अन्य कैपिटल है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी कारें हैं, साढ़े को ये है वो है, ए सारा मैं इतना साजो समान इकट्ठा किया है, मैं ब्रांड नेम दे कपड़े पांदा हाँ, ए सारा पता की है मेरा इकट्ठा किया होया मन दा अपना बनाया होया शरीर। इस शरीर वाले पासों जे मैनू मरन दी जाच आ जाए, मैनू सुख मिलना शुरू हो जाता है, चैन आना शुरू हो जाता है। साईं मेरे चंगा कीता, नहीं तो हम भी दजा आए, किज ना हुजै किज ना सुझै, दुनिया गुजी पाए। लोकी अपने हंकार जगत जलिया, लोकी अपने हंकार ही सड़ते रहते ने। ਜਿਹੜੇ ब्रांड नेम वाले ने, मैं उन्होंने सुनिया और साड़ी पार्टी किट्टी पार्टी विच असीं सिर्फ ब्रांड नेम वाले बुलाते हैं। अच्छा जी, इसी हंकार ही रहते हैं, असीं ब्रांड नेम के कपड़े पाते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया भर दी वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़े ब्रांड नेम दी गेमां विच फसे हुए सन, उन्होंने इकट्ठियां कीता और उन्होंने पुछया तो वो कहते ने असीं तंग आ गए, बाज आ गए, वी वांट मोर एंड मोर ऑफ लैस। हुण असीं संतोखी होना चाहते हैं। इस गेम विच कुछ नहीं पिया, कंपीटीशन की रेस विच कुछ नहीं पिया। जदों असीं कंपीटीशन की रेस विच होंदे आ, फलाणिਆਂ ਦੇ पुत्तर ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ फरारी ही मिलनी चाहिए है। और इस दौर में बस एक ही मुसीबत है कि उससे ऊंची मेरे घर की दीवार।